Hello friends and my dear student. I welcome you all on my YouTube channel Gaudy Singh. In this video today we will discuss chapter 3 of class 10th mathematics, that is pair of linear equation in two variable. So our topics which are going to be discussed, first is linear equation in two variable. In previous video we have discussed about linear polynomial and linear equation, but here we will discuss linear equation in two variables, linear dependency and independency, graphical representation of linear equation in two variables. After that we will discuss general form of linear equation in two variable, how we can solve pair of linear equation in two variable. For this we have four methods: graphical method, substitution method, elimination method, and final is cross multiplication method. First of all, let us start our discussion with the linear equation in two variables. जैसा कि हमें पता है कि for a linear polynomial we can write ax plus b, this is your linear polynomial which is equal to y, this is your px which is equal to y. We have discussed earlier it. So how we can transform this linear polynomial of one variable into two variable, it is interesting. You can see this y can be written, can be ट्रांसफ़र फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस, यानी हम इसको माइनस में ले जा सकते हैं, ए एक्स प्लस बी माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, और ए एक्स माइनस वाई प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. दिस इज योर linear equation in two variable because here it is x which is independent variable, and y is your dependent variable. Okay, and this a is coefficient of x variable, and it is y1 is coefficient of y variable, and this is your constant which is x naught, you can say इसकी हायर डिग्री. तो this is your linear equation in two variable. Why it is linear? Because x has a y degree 1 and y is also has a degree 1. So both variable has degree 1 over there. That's why it is linear equation in two variable. So this is the form. Generally how we can अगर हम बात करें तो जनरल फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. जनरली हम वी कैन जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो. दिस इज योर जनरल फॉर्म. It is your general form of linear equation in two variable. हम इसको जनरली ऐसे लिख सकते हैं, वेयर x के आगे जो भी कोएफिशिएंट होगा उसे हम a कह रहे हैं, y के आगे जो भी कोएफिशिएंट है उसे हम y कह रहे हैं, एंड जो x नॉट के आगे कोएफिशिएंट है, क्योंकि आपको पता है x नॉट इज इक्वल टू 1, सो x नॉट के आगे जो कोएफिशिएंट है हम उसे c कह रहे हैं, यानी कि ये इट बिकम कांस्टेंट, और इसको हम एक कांस्टेंट मान के चल रहे हैं ये वाले. ठीक है, इट इज़ कांस्टेंट बिकॉज दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x या एनी वेरिएबल.
this term is independent of any variable. You can see here there are no variables, that's why it is independent of any variable and hence it is a constant. y के आगे b कोएफिशिएंट है, x के आगे a कोएफिशिएंट्स है, तो ये हम समझ गए। तो दिस इज जनरल फॉर्म। अब हम बात करते हैं आवर सेकंड टॉपिक, डिपेंडेंसी, लीनियर डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी। सो लीनियर डिपेंडेंसी को अगर हम वैसे समझ सकते हैं तो देखिए कैसे समझते हैं। अगर हम बात करते हैं कि राम हैज़, या वी कैन टेक एनी एग्जाम्पल, सपोज आई हैव 4 एप्पल एंड यू हैव 8 एप्पल, इट मीन्स यू हैव एप्पल्स ट्वाइस ऑफ माइन एप्पल्स। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए कि सपोज़ मेरे पास x है और आपके पास y है, लेकिन जो x की वैल्यू है वो आपसे दोगुनी है। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि I have x which is equal to twice of y, यानी x is equal to twice of y, you know, x इक्वल है y के, बट वी हैव टू ट्वाइस y, यानी y के दोगुने के बराबर होगा। यानी आप इसको ऐसे समझिए, x बराबर है ट्वाइस ऑफ y, आप ऐसे समझ सकते हैं। क्योंकि ये यहाँ पर देखिए x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, यहाँ पर ऐसे आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये एक लीनियर डिपेंडेंट है। ये दोनों लीनियर डिपेंडेंसी मेंटेन करते हैं। आप इसको दूसरे सेकेंडली हम ऐसे कह सकते हैं कि y इज़ लीनियरली डिपेंडेंट विद x, y इज़ लीनियरली डिपेंडेंट विद x, यानी कि y जो है डिपेंडेंट है ऑन x लीनियरली, बिकॉज x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2 विच इज़ लीनियरली डिपेंडेंट, एंड द ग्राफ ऑफ दिस इज़ योर लीनियरली डिपेंडेंसी, हम ऐसा कहेंगे। और इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ये हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल बनाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अब हम बात करते हैं लीनियर इंडिपेंडेंसी की, जो कि नॉन डिपेंडेंट होता है, यानी डिपेंडेंसी नहीं है, लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होती जो चीज़ें। हम ऐसा लिख सकते हैं कि पी एक्स यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो एक्स स्क्वायर है प्लस 1 जो भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये आपको पता है इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो आपने देखा होगा, वो इस तरह का इसका एक पैराबोला ग्राफ बनेगा। इसका ग्राफ जो ऐसा बनेगा पैराबोला, लाइक दैट, पैराबोला बनाकर देख लेना आप कि कैसे इसका पैराबोला ग्राफ बनेगा। और आप देखेंगे, और इसका जो ग्राफ बनता है आपने देखा होगा, इसका ग्राफ हमेशा एक लाइन बनेगा, x इज इक्वल टू 2y। अगर x1 है तो y x1 है, या y1 है तो x2 होगा, है ना। ठीक है, और अगर x 0 है तो y भी 0 होगा। ये पॉइंट्स बनेंगे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है और इसका नहीं है। तो लीनियर डिपेंडेंसी का मतलब हम यहाँ पर जो जनरल फॉर्म में ये कह सकते हैं कि n1 इज इक्वल टू n2y, अगर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं और ये उनके कोएफिशिएंट है, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू n1 अपॉन n2 जो भी होगा, एक रेशियो दैट इज़ k कांस्टेंट। ये k कांस्टेंट को फॉलो करेगा, यानी एक कांस्टेंट देगा दैट इज़ k। तो यहाँ पर जो n1 हम कोई भी एक रियल वैल्यू भी ले सकते हैं, रियल वैल्यू ले सकते, कोई भी रियल वैल्यू या पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी हम ले सकते हैं, रियल नंबर्स।
और x और y के ऊपर y यानी x और y के ऊपर हमारे पास पावर 1 है, तो इसलिए हम इसको लीनियरली डिपेंडेंट कहते हैं। यानी दो चीज़ें लीनियरली डिपेंडेंट कब होती हैं, जब हमारा ये कंडीशन, ये क्राइटेरिया फॉलो होता है, तभी वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, वरना लीनियरली डिपेंडेंट नहीं हो सकता। ना अब डिस्कस करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, दैट इज equation 3y is equal to 6. This is your equation. So we can represent this equation into graph. So we have to make a box xy, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ में। चलिए अब हम इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। तो ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, this is your x axis, this is your y axis, this is your x dash, this is your y dash. Origin 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5 माइनस में 1 2 3 4 माइनस में। ठीक है, तो दिस इज योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। वी हैव टू डू लेट, हमने x इज इक्वल टू 0 माना इन दिस केस, तो ये हो जाएगा, अगर हम यहाँ 0 डाल देंगे तो 3y इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 2, कन्फर्म 0 2। अगेन वी हैव अनदर पॉइंट, लेट सम x इज इक्वल टू -3। चलिए x इक्वल टू -3 ले लेते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू, चलिए नॉट, y इक्वल टू 0 ले लिया हमने, y इक्वल टू 0 ले लिया तो x इक्वल टू 6 आ गया, ऐसा ठीक है। लेट हमने अब की बार y इक्वल टू 0 माना, तो उस केस में x इक्वल टू 0 हमें मिल गया, x इक्वल टू 6 हमें मिल गया, 6। ठीक है भाई, तो 0 2 आपका ये 0 और ये 2, तो ये है आपका पॉइंट 0 2 एंड दूसरा है आपका 6 0, तो ये पॉइंट आपका 6 0 है। यहाँ पर इस पॉइंट को हम 6 0 मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम 0 2 मान लेते हैं, और जब हम इन दोनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये इक्वेशन हो गई आपकी x + 3y इज इक्वल टू 6। ओके, दिस इज योर इक्वेशन। सो इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशन। तो किसी भी इक्वेशन को हम ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए हम एक और इक्वेशन लेते हैं। लेट्स टेक अनदर इक्वेशन, दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। सपोज़ अगर हम एक और इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है 2x - 3y = 12, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हम ले लेते हैं। तो क्या हम इस इक्वेशन को भी इस ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं? तो जब हम इस इक्वेशन को भी ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए भी हमें एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। सिमिलरली ऑल प्रोसेस विल बी सेम, x y, we have to find out at least 2 points to have a graph of this equation, at least 2। ठीक है, तो अब की बार इसमें x हम 0 ले लेते हैं तो y = कितना हो जाएगा, दैट इज़ 4। अगर हम x 0 लेते हैं, लेट x = 0, तो y विल बी, देखिए अगर 2 × 0 - 3y = आप 12 लिखेंगे, 0 हो जाएगा तो -3y = 12 आएगा, तो उस केस में y = -4 आ जाएगा। ठीक है, -4।
ठीक है। अगर हम y इक्वल टू ले लेंगे 0, अगर हम y 0 ले लेते हैं तो x इक्वल टू 6 आएगा, नहीं 6, ठीक है। तो उस केस में अगर हम y इक्वल टू 0 ले लें, ठीक है, तो y 0 हो गया, 2x इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डाल दें। तो अब यहाँ पर देखिए, अब हमें इस पॉइंट को लोकेट करना है, यानी हमें ये दोनों पॉइंट्स इस पे लोकेट करने हैं ग्राफ पे। तो 0 -4, दिस इज़ योर 0 -4 पॉइंट एंड दिस इज़ योर 6 0 पॉइंट एंड वी कैन draw the line of this graph through this. So this is the intersection point. So in this graph 6 0 is the common point of intersection. कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस थी, एक ये लीनियर इक्वेशन और एक ये लीनियर इक्वेशन, और हमारे पास एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, दैट इज़ 6 0 पॉइंट। दिस इज वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट, दिस इज द पॉइंट वेयर दीज टू डिफरेंट लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, दैट पॉइंट। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं इंटरसेक्शन point of two different linear equations, या हम कह सकते हैं linear equations और straight line कह सकते हैं ना, ये straight line graph है, इसलिए intersection point of two different is the solution of pair of linear equation in two variable, pair of linear equation in two variables. This is all about. So intersection point, so graphically we can solve this pair, and these are the two different linear equations and hence it is a pair. So the solution of this pair is 6 0. 6 0 is the point where x and y, so x is equal to 6 and y is 0 will be the values of, hence x is equal to 6 and y is equal to 0 is the answer. So in this way we solve a linear equation in two variable graphically. अब एक बात और हम कर लेते हैं यहाँ पर, और वो ये है कि जर्नल फॉर्म ऑफ हम कैसे दिखाएंगे एक लीनियर इक्वेशन। तो जर्नल फॉर्म की बात करते हैं, फिर उसमें आपको समझाता हूँ क्या होता है। जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैन बी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन जनरल फॉर्म. सो लेट्स हैव अ पेयर. सो वी हैव अ पेयर ऑफ इक्वेशन, we have a pair of equation and this pair is a1 x1 plus b1y plus c1 is equal to 0. It's the first equation. We have another pair a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So in a two different linear equation in two variable, there will always be different coefficients, may be different or may be same coefficient. So in any equation the values of coefficient differ
वन इक्वेशन टू अनदर इक्वेशन, ये हम कह सकते हैं। सबसे पहले हम एक चीज़ समझेंगे जो यहाँ पर समझने वाली बात है कि इफ़ वी हैव अ पेयर, हमारे पास ये पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं और इनके दो ग्राफ यानी दो स्ट्रेट लाइन बनेंगे। तो इन ए प्लेन हम जानते हैं एक चीज़, आप देखिए रफली कि इन ए प्लेन व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ two straight lines. Suppose we have a two straight line in a plane, what will be the possibilities? They may be in a plane, they may be non-parallel, first possibility. If they are non-parallel, it means or you can take this parallel line, we can extend these parallel lines and you will see that non-parallel line will definitely intersect at a point. So these are the non-parallel line. If we produce these lines to a common point, it means these non-parallel line definitely intersect at a point. So non-parallel lines. So first possibility. Second possibility यहाँ पर ये हो सकती है कि lines may be parallel. It means these lines will never intersect. It means they will never have a common point of intersection. And third possibility is that a line, one line can, this is a line and another line can coincide with the line, यानी two lines are lying along to each other, यानी you can say that एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हम ऐसे समझ सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब ये दोनों लाइन एक ही मानी जाएंगी, कहने का मतलब यही है। तो ये हमारे पास थ्री पॉसिबिलिटीज़ हैं एक लाइन के होने की, यानी एक प्लेन में अगर दो स्ट्रेट लाइन है और उनकी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो नॉन पैरेलल लाइन हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये दोनों लाइंस जो कि हमने ये वाली इक्वेशन है आपकी 2x minus 3y is equal to 12. So these are the two different equations and different graphs, and these lines are non-parallel and hence they are intersecting at a point. So this point is the solution of this pair. But suppose in case if we have two different equations and different straight lines which are parallel, and you can see these parallel line will never intersect each other, it means we will have no solution. So हमें कभी solution नहीं मिलेगा. These are the parallel lines. ठीक है, और ये coincidence या coinciding, coincide line coincided line coincide होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हमें, अब देखिए हम पहले से ही प्रीजुडाइज यानी कि ये कह सकते हैं कि हम डिटरमाइन कर सकते हैं क्या पहले से ही कि उस लाइन का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस लाइन का इक्वेशन जो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं उसका ग्राफ बनेगा या नहीं बनेगा, या सॉल्यूशन उसका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ग्राफ तो हम बनाएंगे लेकिन सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मान लो सपोज़ हमने एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिए और उसका हम ग्राफ बना दिए, उसके बाद पता चला उसका सॉल्यूशन नहीं है, वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो इसका मतलब हमें ये लगा कि हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो क्या हमारे पास कोई आइडिया है जिससे हमें ये पहले ही पता चल जाए कि इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा बिफोर दी ग्राफ? सो हम क्या कर सकते हैं कि कोएफिशिएंट्स को रिलेट कर सकते हैं। हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स को रिलेट करने का एक तरीका है कि दोनों लाइंस का अगर देखिए, पहला केस चलिए हम डिफरेंट लाइन लेते हैं, A1
B1 C1, A2 B2 C2, X Y। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको कोएफिशिएंट साफ पता चल रहे हैं, A1 B1 C1, और यहाँ का इस लाइन का कोएफिशिएंट है A2 B2 C2। अब इस लाइन में हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जब हम इनके कोएफिशिएंट्स का रेशो करते हैं, देखिए कोएफिशिएंट्स का रेशो करेंगे तो हम लिख सकते हैं A1/A2 B1/B2 C1/C2। पहली कंडीशन, अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो होती हैं, A1/A2 B1/B2 C1/C2, अगर ऐसा होता है कि जो A1/A2 यानी कोएफिशिएंट्स का रेशो, जो x वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट्स का रेशो y वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स के रेशो को इक्वल आता है और C1 और C2 कांस्टेंट का रेशो को इक्वल आता है, तो हम इसको कहेंगे, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कहेंगे हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड डिपेंडेंट पेयर। हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉल्ड डिपेंडेंट पेयर। और एक और बात हम कह सकते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, एंड इट विल हैव ऑलवेज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इसका मतलब इससे हमें अगर इंडिपेंडेंट पेयर मिल रहा है, इस वाली चीज़ से हमें ये पता चलता है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, ये कोइंसाइडिंग लाइन, क्या था, कोइंसाइडिंग लाइंस होंगी ये। ओके, दूसरे केस में, अच्छा इसको पहले मैं थोड़ा एलेबोरेट कर दूँ आपको कि क्या चीज़ है। जैसे मान लो अभी हमने एक इक्वेशन ली थी x + 3y = 6, ये हमने इक्वेशन ली थी। अब इस इक्वेशन में x + 3y, अगर मैं एक इक्वेशन लेता हूँ 2x + 6y = 12, देखने में ये दोनों ही, अगर हम देखें गौर से, तो इनके कोएफिशिएंट्स डिफरेंट हैं, x का कोएफिशिएंट और इसका डिफरेंट कोएफिशिएंट्स हैं, और इससे हमें ये लगता है कि ये दोनों इक्वेशंस जो हैं डिफरेंट इक्वेशंस हैं और इनके ग्राफ भी हम डिफरेंट सोचेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसको देखिए, अगर हम यहाँ से इस इक्वेशन में 2 कॉमन ले लेते हैं तो x + 3y हो जाएगा = 12, और आपको पता है इसको हम लिख सकते हैं 6। तो ये देखिए, अब यहाँ पर इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस है नहीं है। इसका मतलब अगर हम 1/2 1/2 1/2, इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि इनके रेशोज़ करते हैं। अगर हम देखो ये उसका डबल था, यानी कि ये इक्वेशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इनके कोएफिशिएंट्स का रेशो करते हैं वो सेम होना चाहिए, यानी रेशो में होना चाहिए, यानी कि जो भी होगा इक्वल रेशो में होना चाहिए, है ना, तभी वो सेम इक्वेशन बनेगी, अदरवाइज इट विल नॉट बी अ सेम इक्वेशन। तो हमने इसलिए ये कंक्लूजन निकाल लिया यहाँ पर, ये वाला जो कंक्लूजन निकाला कि भाई उनका रेशो जो है सेम होना चाहिए, जो x वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट्स का रेशो, y वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट्स का रेशो, और जो कांस्टेंट है उनके कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट का रेशो अगर वो इक्वल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कोइंसाइडिंग लाइंस हैं, यानी लाइन विल बी सेम, वो लाइन सेम ही है। ओके, तो ये हमें पहला कंक्लूजन मिला। दूसरे तौर पर हम एक और चीज़ देखेंगे कि अगर मान लो वो सेम नहीं होता, तो देखिए अगर ये x और y के जो कोएफिशिएंट्स हैं अगर वो सेम नहीं आएंगे, अगर हम A1/A2 और B1/B2 की बात करें और C1/C2 की बात करें, अगर इसमें ये नॉट इक्वल आ जाए और ये तो इक्वल रहेगा, लेकिन ये चीज़ नॉट इक्वल हो गई तो हमें, क्योंकि ये नॉन पैरेलल लाइंस हैं, ये क्या है, ये इंडिकेट करता है नॉन पैरेलल लाइंस को। ये क्राइटेरिया जो हमने निकाला कोएफिशिएंट्स का, यानी कि जो x और y के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका रेशो सेम नहीं आएगा, बाकी कांस्टेंट का और किसका सेम हो सकता है।
अगर ऐसा हो जाता है तो ये नॉन पैरेलल लाइंस हैं, यानी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और हम इसको कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं, नॉट, इसको हम नाम देंगे इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा और नॉन पैरेलल यूनिक सॉल्यूशन देगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा, दैट विल बी यूनिक सॉल्यूशन। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और ये कंसिस्टेंट, और इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी इस पेयर का नाम रहेगा कंसिस्टेंट। नाउ फाइनली थर्ड केस अगर हम लेते हैं कोएफिशिएंट्स की हेल्प से, तो हमारा थर्ड केस है कि a1 a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये हो जाएंगे पेयर, ये रिप्रेजेंट करता है पैरेलल लाइंस को, और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। और इट विल हैव अ नो सॉल्यूशन, इट विल हैव नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा नो सॉल्यूशन, यहाँ पर आएगा यूनिक सॉल्यूशन, और यहाँ पर देखिए इट विल कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ये कहलाएगा आपका इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और ये नॉन। ठीक है, हमें तीनों चीज़ें इसमें यहाँ से आइडिया हो गया। तो इन चीज़ों को आप दिमाग में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कोएफिशिएंट्स की मदद से पहले ही ये पता कर सकते हैं कि कोई भी लाइन का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या डिपेंडेंट होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं, ठीक है। हालांकि हमने वैसे कर लिया है ग्राफिकल मेथड, आपको पहले ही मैंने समझा दिया कि जो ग्राफिकल मेथड है उसमें मैंने आपको पहले ही बताया है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे सम अलजेब्रिक मेथड टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो हमारे पास पहला मेथड है जो अलजेब्रिकली सॉल्व होगा, वो है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे पास जो इक्वेशन थी, जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास इक्वेशन थी x प्लस 3y ना, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इट वॉज आवर फर्स्ट इक्वेशन, एंड another equation we have 2x minus 3y is equal to 12. 2x minus 3y is equal to 12. This is your second equation. यहाँ पर ध्यान देंगे ये प्लस और ये माइनस, इसका मतलब ये सेम नहीं होने वाली। ये यहाँ देखिए, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का नहीं, डिफरेंट इक्वेशंस हैं ये, ठीक है। ये कोइंसाइडिंग इक्वेशन नहीं है, ये कोइंसाइडिंग इक्वेशंस नहीं है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, तो हमें सब्स्टिट्यूशन अगर करना है तो हम सिंपल इक्वेशन को लेंगे और उसकी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, या जो हैवी जो वैल्यू यानी कि जो हैवी डिजिट्स हैं, जिसके अंदर हैवी कोएफिशिएंट्स हैं यानी बड़े वाले कोएफिशिएंट्स हैं, उनको हम पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे। यानी कि हम इस इक्वेशन को लेके चलते हैं, तो हम देखते हैं हमारे पास है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो हम इस पूरी इक्वेशन को x को y टर्म में लिखना चाहते हैं, कहने का मतलब है, तो हम लिखेंगे 2x इक्वल टू 12 प्लस 3y, ठीक है। तो x मतलब हो जाएगा 12 प्लस 3y अपॉन 2, दिस इज़ द वैल्यू। सो हमें क्या करना पड़ेगा, पुट, क्योंकि इसका नाम सब्स्टिट्यूशन है, तो यानी कि हमें ये जो x है इसकी जगह इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, यानी पुट x इज इक्वल टू 12 प्लस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में डाला, इन इक्वेशन फर्स्ट।
तो हमने डाल दिया भाई 12 + 3y/2 इसमें डाल दिया, प्लस 3y आगे लिखेंगे = 6। आप इसे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप जनरली स्टूडेंट से ये गलती होती है कि वो इस 2 को डायरेक्टली इससे 6 से मल्टीप्लाई करने चले जाते हैं, ये नहीं देखते यहाँ पर प्लस का साइन है। अगर वो फैक्टर फॉर्म में होगा, यानी कि अगर कोई भी चीज़ फैक्टर फॉर्म में होगी, यानी कि देखिए अगर जैसे 6 + 2 और अल्टीमेटली ये एक फैक्टर है और यहाँ पर 3 है = 6, तब ये यहाँ मल्टीप्लाई में जा सकता है, ठीक है, डिवीज़न के नीचे से, क्योंकि ये फैक्टर फॉर्म में है, फैक्टर फॉर्म में ये जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर 6 + 2/1 है, ये अल्टीमेटली पूरे पे डिवीज़न नहीं है, तो ये यहाँ से डायरेक्टली नहीं जा सकता, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर गलती ना करें स्टूडेंट्स। तो 12 + 3y = 2, अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। आप एलसीएम ले सकते हैं, इट विल बी 2। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 12 + 3y प्लस एलसीएम लेने पर ये 6y = 6 हो जाएगा। ओके, तो उस केस में आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 12 + 9y = 12, तो 9y = 0, तो y = 0। ठीक है, समझ में आ गया। तो y की वैल्यू 0 आ गई, आपको पता चल गया, और हमारा सॉल्यूशन में भी यही था। नाउ पुट दिस y = 0 इन x वैल्यू, इसमें डालेंगे, यानी कि इस वैल्यू को हम y की वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए x = 12 + 3y की जगह 0/2 एंड इट विल बी 12/2 एंड इट गिव्स यू 6। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 6। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर, सॉल्यूशन ऑफ हैंस, सॉल्यूशन ऑफ जो लीनियर पेयर आया वो आया x = 6 एंड y = 0, ये आया सॉल्यूशन। वही चीज़ हमने ग्राफिकली निकाला था, ग्राफिकली भी 6, 0 हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट था, और हमने ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका आंसर निकाल लिया है। तो इन दिस वे वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़ इन इक्वेशन। तो अब हमारा सेकंड मेथड है जो हम डिस्कस करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। फॉर एलिमिनेशन ऑल्सो वी विल टेक सेम क्वेश्चन, ठीक है, हाउ वी कैन सॉल्व। सो जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल हम उससे चेंज नहीं कर रहे, वही एग्ज़ाम्पल लेंगे। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है, तो बहुत सिंपल हो जाएगा ये एलिमिनेशन से, ऐसी बात नहीं है, हम कर सकते हैं आसानी से। करना क्या है, एलिमिनेशन का मतलब होता है कि किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मतलब किसी भी एक वेरिएबल को अगर हम यहाँ से हटा पाए तो हम डायरेक्टली y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास प्रोसेस है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से हम सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब जो सब्ट्रैक्शन होगा वो सब्ट्रैक्शन राइट हैंड साइड का राइट हैंड के साथ, लेफ़्ट हैंड साइड का लेफ़्ट हैंड के साथ किया जाएगा। इसका मतलब ये होता है। तो हमने सपोज़ ऑन सब्ट्रैक्टिंग, अगर हम इसी सिंपल ले लें तो ऑन सब्ट्रैक्शन, ऑन एडिशन ले लो या ऑन सब्ट्रैक्शन, अगर हम इसको देखें। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बहुत ही सिंपल केस में बता दूं कि अगर हम y
वेरिएबल को देखें, इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो लगभग मैच करें, ये प्लस का 3 ये माइनस का 3। अगर दोनों साइन ये प्लस माइनस है, अगर हम y को टर्मिनेट पहले करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि y को एलिमिनेट कर दें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ऑन एडिंग, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस को, यानी ऐड ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को अगर हम ऐड करें तो हम देखेंगे कि कैसे ऐड करेंगे। देखिए, आप जनरली तो ऐसे ऐड कर सकते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है लेफ़्ट हैंड के साइड ऐड होगी, जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के साथ ऐड होगी। तो करिए जैसे हम कर रहे हैं, x प्लस 3y इज़ एडेड विद 2x माइनस 3y, ये ऐड हो गई x प्लस 3y को, यानी ये वाली चीज़ पूरी ऐड हो गई इसके साथ, और जो ये 6 है वो ऐड हो गया 12 के साथ। ऐसा करने पर हमें पता चल रहा है कि x और 2 जो लाइक टर्म्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, लाइक टर्म्स आर एडेड विद ईच अदर। तो ये लाइक टर्म यानी इसके साथ और ये y इसके साथ, तो यानी कि हम लिखेंगे 3x यानी 2x प्लस 3x, लेकिन प्लस का और माइनस का, और यहाँ पे प्लस का साइन आप देख सकते हैं, ये -0 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इस हिसाब से ये हो जाएगा 6 प्लस 12 दैट इज़ 18। तो x इज इक्वल टू 18 अपॉन 3, तो दैट इज़ 6। तो आपको x की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली मिल गई 6 बाय एलिमिनेशन मेथड। इस तरीके से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ देखिए, अब इस x की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो किसी भी इक्वेशन में। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, सिंपल इक्वेशन में डाल लो या सेकंड में डाल लो, एज द चॉइस, इट डजेंट मैटर। तो हमने डाल दी फर्स्ट में, तो 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 6 होगा, तो 3y इज इक्वल टू 0 एंड इट विल गिव यू y इज इक्वल टू 0। तो हमें देखिए ये सॉल्यूशन मिल गया। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप सब्स्टिट्यूशन करो, दोबारा आप अब इस टर्म को टर्मिनेट करेंगे। चलो हम सब्स्टिट्यूशन से ना करते, चलो हम ऐसा ना करते कि x की वैल्यू इसमें ना डालते, हम चाहते कि इसे कम्प्लीटली एलिमिनेशन मेथड से ही पूरा सॉल्व किया जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए आपके पास जो इक्वेशन है वो आपको पता ही है कि वो इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और एक है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब हम चाहते हैं कि x कोऑर्डिनेट को टर्मिनेट करें, यानी कि हम चाहते हैं कि जो x वेरिएबल है उसे टर्मिनेट करना चाहते हैं, है ना। हम चाहते हैं कि x वेरिएबल को टर्मिनेट कर दें। तो हम x वेरिएबल को टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं, x वेरिएबल को टर्मिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये टर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि ये इक्वल कोएफिशिएंट नहीं है, ये जो कोएफिशिएंट है x के आगे इक्वल नहीं है। तो हमें इसके कोएफिशिएंट को फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल करना है, तभी वो टर्मिनेट होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। पॉइंट वाली बात है, यहाँ पर नोट कर लें कि अगर हम x कोऑर्डिनेट को पूरी तरह यानी x वेरिएबल को टर्मिनेट करना चाहते हैं तो उनके जो कोएफिशिएंट हैं वो कोएफिशिएंट एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, यानी कोएफिशिएंट्स जो है सेम होना चाहिए। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई द इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट द इक्वेशन। तो हमने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन जो है चेंज हो जाएगी 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 12 में, और ये इक्वेशन हमारे पास थी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अंडरस्टैंड। अब देखिए दोनों का प्लस साइन है, तो जब एग्जैक्टली सेम साइन हो तो ऑन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। हमें क्या नोट है, सब्ट्रैक्शन। तो ऑन सब्ट्रैक्शन हमें ये सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा इसमें कि ये सब्ट्रैक्शन का मतलब, अब हमें सब्ट्रैक्शन करने के लिए देखिए 2x प्लस 6y ये जो है इसको सब्ट्रैक्ट करना है इस वाली टर्म से 2x माइनस 3y को, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है 12 माइनस 12 से। समझ में आ गया। तो ऑन सब्ट्रैक्शन हमें मिला 2x प्लस 6y माइनस 2x, और इसका साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, तो प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो सब्ट्रैक्शन ये कट जाएगा,
तो उस हिसाब से हमें मिला 6y 9y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0। ये देखिए इस तरीके से हो गया। तो x की वैल्यू 6 आई थी, y की वैल्यू 0 आ गई। तो ये इस तरीके से हम सब, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जब किसी भी एक वेरिएबल को टर्मिनेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक, हमें उसके कोएफिशिएंट्स को, उनकी वैल्यू को, साइन से मतलब नहीं है कि प्लस हो या माइनस हो, कम से कम उसकी वैल्यू को एग्जैक्टली सेम करना है। वो हम चेंजेस करके कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में। जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में चेंजेस किए कि हम पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट द इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी, तो पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट द इक्वेशन वी हैव मल्टीप्लाइड इट बाय 2, हमने उसे 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें चेंजेस आए 2x प्लस इसको भी किया तो 6y प्लस 12, इस तरीके से इक्वेशन। ऐसा करने से इक्वेशन बदलती नहीं है, इक्वेशन वही रहेगी। इक्वेशन ये वाली और ये वाली सेम ही है क्योंकि रेशो सेम है, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ना थ्रू आउट द सेम, तो इनके कोएफिशिएंट्स का रेशो सेम है और आपको पता था ये सेम ही लाइन है, अभी मैंने डिस्कस किया था। तो हम ऐसा चेंजेस कर सकते हैं इस क्वेश्चन में और इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब जब ऑन सब्ट्रैक्शन हम इस प्रोसेस को करेंगे, ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यानी कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 माइनस 2x, ये प्लस हो जाएगा 3y इक्वल टू 2, इस तरीके से सॉल्यूशन आ गया। अब ज़रा देखिए, ये है पूरा एलिमिनेशन मेथड। एक एग्जांपल और ले लेते हैं एलिमिनेशन का ताकि आपको ये और पूरी तरह क्लियरली हो जाए। चलिए हम अब ले लेते हैं 2x। तो हमारा एक और एग्जांपल हमने ले लिया है ताकि आपको थोड़ा और समझ में आ जाए। एग्जांपल हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, फर्स्ट एंड सेकेंड रीज़न, ठीक है। अब इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इसमें कोई भी चीज़ टर्मिनेट करनी है एक, तो कैसे करें टर्मिनेशन। आपको पता है इनके कोएफिशिएंट डिफरेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 है या 6 है या 2 है या 4 है या 8 है 7 है, चेंजेस डिफरेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 2 से ही मल्टीप्लाई कर दें। देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट इक्वेशन को, पूरी को थ्रू आउट द इक्वेशन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सेम इक्वेशन रहेगी, मल्टीप्लाई करने पर चेंज होगी। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 बन जाएगा 4x प्लस 6y प्लस 16, ठीक है। तो फॉर चेंजेस हमने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। तो ये चेंजेस आ गए आपके अंदर, 4x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 18, ठीक है। 16, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हो जाती है मिस्टेक्स। तो 4, 6 एंड 8, 16। अब इसमें हम एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, इस वाली इक्वेशन को देख लेते हैं। ये हमारी 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7 है। अब देखेंगे आप इन दोनों जो वेरिएबल्स हैं उनके जो कोएफिशिएंट है, x के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो एग्जैक्टली प्लस प्लस है, सेम साइन है, यानी प्लस ऑपरेटर लगा हुआ है दोनों में। तो हम देखेंगे अगर हम इसको ऑन एडिशन करते तो 8 बन जाएंगे, टर्मिनेट आउट नहीं होगा। तो ऑन सब्सट्रैक्शन हमें ऑन सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो ऑन सब्सट्रैक्शन हमें क्या मिलेगा कि 4x प्लस 6y, ये जो हमने लिया 4x प्लस 6y, इस पूरे को सब्ट्रैक्ट करना है 4x प्लस 6y, देखिए ना, 4x प्लस 6y प्लस 16, ठीक है। ये भी 4x प्लस 6y 16, सेम आ रहा है, ठीक है। तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16 माइनस 7, ठीक है। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4x से 4x कट जाएगा,
ठीक है। 4x अब देखेंगे 4x प्लस 6y माइनस 4x प्लस माइनस 6y, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है और इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू 9। अब 0 इज इक्वल टू 9 मतलब इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ये इसको वेरीफाई नहीं कर रहा और ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई इट मीन्स पेयर हैज़ नो सॉल्यूशन, पेयर का कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये एलिमिनेशन से हमें पता चल जाता है। एक सिंपल एग्जांपल, अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए तो नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा इसको करने का तरीका, तो मेरा समझाने का तरीका था। करने का देखो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि जैसे हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, जैसे करना चाहते हो तो इजीली कैसे कर सकते हो। वैसे ये करने का रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये नहीं है, वैसे ये समझाया है मैंने आपको। वैसे हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए x प्लस अगर 3y इज इक्वल टू 6 है, ठीक है, यहाँ देखिए इसको हटा देते हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है ना, और हमारी दूसरी इक्वेशन है, चलो मान लो कि ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 है। अगर हम इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगी आपकी 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। तो ऑन, अब देखिए ये दोनों एडिशन ऑन सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये माइनस, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ऑन सब्सट्रैक्शन ये जो प्लस का साइन है इट बिकम माइनस, और ये जो प्लस का साइन है इट इज़ ऑल्सो बिकम माइनस, तो ऑल साइन चेंजेस। तो ये जो इक्वेशन है इसके साइन अब ये वाले माने जाएंगे, ठीक है, ये नहीं माने जाएंगे, ये वाले माने जाएंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं, आपको पता ही है। तो ये साइन चेंज हो जाएगा तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 9y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन आ जाएगी। देखिए इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ योर एलिमिनेशन मेथड। अब लास्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एंड इट इज़ वेरी important and it will be very useful in complex calculations.